This is All India Radio. The news read by Anita Anand. Aadhaar saturation across the country has now crossed a 125 crore mark. Over 125 crore residents of the country have the 12-digit unique identity card. The achievement comes along with the rapidly increasing use of Aadhaar as the primary identity document by citizens. This is evident from the fact that Aadhaar based authentication services have been used close to 37,000 crore times and since its inception. At present, Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, receives about 3 crore authentication requests every day. Residents are also more inclined to keep their details updated as UIDAI receives about 3 to 4 lakh updates requests every day. In Uttar Pradesh, situation in the entire state continues to remain peaceful amidst elaborate security arrangements in sensitive areas. As a precautionary measure, internet services are also blocked in around 21 districts, including the state capital Lucknow, Aligarh, Agra, Mathura and Bulandshahr since last night. State DGP OP Singh said Section 144 has been imposed in the entire state. Union Minister Hardeep Singh Puri has said that the Citizenship Amendment Act CAA does not alter India's secular credentials. He accused opposition parties of spreading misinformation on the new law. Mr. Puri tweeted that the CAA neither alters nor challenges rights of any Indian citizen, irrespective of religion, caste, creed, sect, ethnicity or race. He said the narrative that it threatens religious minorities in India is ignorance at best and treacherous at worst. In yet another ceasefire violation, Pakistani troops targeted residential area of Chantanda village in Hiranagar sector along the international border in Jammu and Kashmir. 3 houses suffered damages and some animals were also injured in the firing. Pakistani Rangers started the firing around 9 p.m. last night with mortars and small guns and continued till 4 this morning. Alert BSF Jawans gave a befitting reply to the firing. To give a thrust to the national Fit India movement, it has been decided that there will be a convergence of activities of Ministries of Health and Youth Affairs and Sports. Union Health Minister Dr. Harshvardhan stated this after meeting Sports Minister Kiren Rijiju yesterday. They met to chart the convergent actions of the two ministries for greater visibility and synergy towards popularizing fitness in the country in various age groups. Fit India movement was launched earlier this year to encourage people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives. Vice President M. Venkaiah Naidu dedicated the LBG bottling plant at Balangir in Odisha to the nation. He did this via video conferencing from Raipur in Chhattisgarh as his visit was cancelled due to inclement weather. In his absence, Odisha Governor Professor Ganeshi Lal inaugurated the BPCL's LPG bottling plant. The MiG-27 aircraft roared through the skies one last time today after serving the Indian Air Force for over 3 decades, proving to be an ace attacker during the 1999 Kargil War. It earned the moniker Bahadur from Indian Air Force pilots. The IAF bid adieu to its squadron of 7 aircraft from the Jodhpur Air Base. Veteran and serving air warriors took part in the ceremony in large numbers. Air Officer Commanding-in-Chief Southwestern Air Command, Air Marshal S.K. Gotia presided over the decommissioning ceremony. Union Home Minister Amit Shah has said that Himachal Pradesh has always been in the forefront in making supreme sacrifices for the country. Addressing a rally in Shimla today, Mr. Shah said there has been 4 Paramveer Chakra winners from the state. He saluted the bravery and sacrifices of the people of Himachal Pradesh for their sacrifices for the country. Cold wave continued unabated in northern India, including the national capital today. 21 trains were delayed due to weather conditions. In Delhi, the minimum temperature was recorded at 4.2 degrees Celsius last night, 3 notches below normal. The Delhi NCR region is expected to record its second coldest December since 1901. Met Department said that the city will witness clear skies and severe cold day conditions. People in Ladakh region are celebrating Ladakhi New Year Losar today. Lieutenant Governor R.K. Mathur participated in the celebrations organized by Ladakh Buddhist Association and Leh Hill Council in Leh. And that is the end of this news bulletin.
Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investment, borrowings and taxation. We'll also discuss on economic matters of the country. Today's topic is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. You can send your queries regarding this topic on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मनी मैटर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर वित्तीय जागरूकता पर आधारित इस कार्यक्रम में आज का विषय है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस विषय से जुड़े आप अपने सवाल ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम में इसके साथ ही प्रमुख आर्थिक खबरों पर भी एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। आज के कार्यक्रम पर चर्चा करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में अर्जुन चौधरी से। Looking at the news on Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima, just to give you a brief introduction, it is an insurance scheme for the age group of 18 to 50 years. The person must have a bank account and there must be a consent to enter into this particular scheme. The premium is auto debited from the account of the person who has applied for the scheme. Aadhaar is the primary KYC for the bank account. Life cover is of 2 lakh rupees, and this insurance scheme, we'll understand from our expert Udayan Ray, is a pure insurance scheme where the beneficiary gets 2 lakh rupees for 1 year in case of death of the person, and due to any reason, even if it includes suicide in this case, the premium is 330 rupees per annum, which is auto debited in one installment. The contract is from the 1st of June to the 31st of May, and the scheme is being offered by Life Insurance Corporation and for that matter any other life insurance company as well, as long as they fulfill the conditions of maintaining this scheme and how to fulfill the claim of the beneficiaries under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. So let's try and understand some of the intricacies of this scheme so that the average person can apply for it and the near and dear ones can claim in case of death of the applicant. Udayan, let's try and understand what the scheme is all about. Insurance over a period of time has been mixed with fixed deposits, term insurance, and it has lost its sheen somewhere along the line where the person who's applied for a scheme does not understand that whether this is a savings instrument or there is a claim to be made as a beneficiary under the scheme or not, which is pure insurance. So how would you rate the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana in terms of being pure life insurance? Well, Arjun, as you rightly mentioned, it is what is called a term insurance. So you're getting a pure cover, life insurance coverage, which is in this case is 2 lakhs to protect. Now, why do we need life insurance? If you want to be put in a sentence, if something were to happen, in this case we are talking about death of the bread earner, then what typically would happen in a family, that the family will dip into the savings for its regular expenses, and there are future needs like child's higher education and other things which your family is going to fall short. Now, because you do not have enough savings and you don't want a dip in the savings being used, that's why you need life insurance. Now, as you very rightly pointed out, there have been a lot of bundling going around, life insurance plus savings. Now, what that does is it increases the premium amount, where they're giving extra services, so the premium amount
amount goes up, and that actually makes it beyond the purview or beyond the access of a common person. Now this is what this scheme does for 330 rupees, assuming that you're making an application in the month of June, then it's 330 rupees. If you make the application later, depending on which quarter, it's actually lesser, and for that you get 2 lakhs. Now from the age of 18 to the age of 50, you can make an entry into the scheme. The coverage is there for age 55. That's what your working life is about. So during the working life, if anything happens to it's a great entry point for the most of the Indian citizens who do not have access to life insurance coverage. Arjun, it's worth pointing out that as a percentage of GDP in our country, life insurance coverage is little above 3.5%. It keeps going down and up. It's never is going to be enough, because it's leaving a huge amount of population extremely financially vulnerable, and that's where this scheme is so important. उदयन, मोटे तौर पे जिस तरह से अभी बात करी, अर्जुन ने भी जैसे कहा कि ये प्योरली टर्म इंश्योरेंस है, तो क्या हमें अपने आप को अपने श्रोताओं के जानने के लिए बताना पड़ेगा कि टर्म इंश्योरेंस और मतलब जो एक टर्म प्लान है, ये दूसरे प्लान से किस तरह से इसमें अलग है? और क्योंकि आम तौर पे जब लाइफ इंश्योरेंस में एक टर्म प्लान लिया जाता है, तो मोटे तौर पे यही माना जाए कि आपको उसमें मैच्योरिटी का किसी तरीके का लाभ नहीं मिलेगा. क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है. अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं, अगर टर्म प्लान इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर आप कोई रोटी और दाल ले रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बनकर आप रोटी दाल के साथ खा रहे हैं. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी. टर्म प्लान में सिर्फ एक चीज मिलेगी. कॉम्बिनेशन जो होता है, नॉर्मल जो दूसरे लाइफ इंश्योरेंस है, हाँ जी, जैसे एंडोमेंट प्लान हैं, जहाँ पे सेविंग्स का एक एलिमेंट होता है, और यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी होता है. तो एक अवधि के बाद आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, बशर्ते आप उस समय, उस तारीख तक जो भी बीमित व्यक्ति है वो जीवित हो अथवा नहीं हो. अगर नहीं होता है तो बीमा का लाभ मिल जाता है, और अगर जीवित है तो भी उसको एक लाभ मिलता है. लेकिन चूंकि एक टर्म प्लान है जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके की आपदा की स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उस पे जो आश्रित लोग हैं, उनको फौरी तौर पर एक बीमित राशि का, जो एक निश्चित बीमित राशि है, इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में वो 2 लाख रुपए की निश्चित राशि है जो मिल सकता है. अब मेरा दूसरा, इसमें सिर्फ एक श्रोताओं के लिए मैं आपसे ये जानकारी जरूर चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि 18 साल से 50 साल तक की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है. क्या उसके लिए अलग अलग प्रीमियम होगा, या वो 330 रुपए जो बताया गया है वो फिक्स होगा? मेरी जानकारी के हिसाब से वो फिक्स प्रीमियम है. सिर्फ वो फर्क इस तरीके से पड़ता है कि ये हर साल, जैसे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके मोबाइल का इंश्योरेंस होता है, हर साल रिन्यू होता है, ये आप हर साल दे रहे हैं, ऑटो डेबिट हो रहा है. तो एक्चुअली जो टर्म प्लान प्योर रिस्क कवर जिसे बोलते हैं, जो अवधि, एक तरीके का रिस्क प्लान, ये जी बिल्कुल, जैसे आप एक मोबाइल या एक 2 पहिया वाहन में जिस तरीके से आप इंश्योरेंस करते हैं, और जिसका भी कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, जी उसका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता. यूं तो टर्म प्लान ऐसे भी बाजार में है जहां पे आपको प्रीमियम की वापसी होती है, पर उससे क्या होता है कि आपका प्रीमियम बढ़ जाता है. यहाँ पर सरकार का टारगेट ये है कि प्रीमियम कम से कम रहे, इसलिए उस अवधि में ही कवरेज मिलता है. उसको खत्म होने के बाद आपको कुछ और कोई बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता. पर इसमें फायदा ये है कि एक तो आप उस वक्त, जिस वक्त आपका जो वर्क लाइफ है, उस वक्त आप कुछ ना कुछ बचत आप कर रहे हैं, तो 55 साल की उम्र तक ये उम्मीद की जा रही है आप कुछ ना कुछ बचत करते रहेंगे. और सरकारी बाकी जो बचत योजनाएं हैं, रिटायरमेंट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, वो योजनाएं इसलिए बनाई जा रही हैं कि ताकि आप वहाँ पे पैसे लगाते रहें. जो जैसे अपने रिटायरमेंट के बारे में यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में डिस्कशन हुआ है, तो वो सब किया जा रहा है. और वो सब, ये बेसिकली जो आप जितने भी प्रोग्राम्स आपने यहाँ डिस्कस किए हैं, ये सोशल सिक्योरिटी
चाहे आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका जीवन बीमा, हेल्थ बीमा और पेंशन, ये सोशल सिक्योरिटी के एलिमेंट्स हैं जो सरकार ने उपलब्ध कराए हैं और बहुत ही वाजिब दाम में, वाजिब चार्जेस या सेविंग्स अमाउंट्स में, और इससे ताकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये फैले, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ना रहे, जो अभी भी ये सिचुएशन है। अच्छा, तो माना ये जाए कि जो इस तरह की जो बीमा योजना है, जिस तरह आपने जिक्र किया सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य के लिए ये बीमा योजना लाई गई है, जिसमें 18 साल से ऊपर और 50 साल के तक का जो व्यक्ति है या वो इसके लिए एलिजिबल है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उसको हर साल 330 रुपए का एक फिक्स अमाउंट, एक नियत राशि जो है वो अपने अकाउंट, जनधन योजना के माध्यम से या किसी और सेविंग्स अकाउंट के माध्यम से उसको चुकाना होगा। इस पे बैंक में थोड़ा सा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज यानी प्रशासनिक शुल्क या जीएसटी भी का अलग से इस पे चार्ज लगेगा। और तीसरी इस योजना की जो खासियत जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये ऑटो डेबिट है, मतलब आपके जो जमा खाता है या जनधन अकाउंट है उससे सीधे सीधे तौर पे इसका प्रीमियम कट जाएगा। और इसकी जो प्लान, इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये 1 जून से 31 मई तक रहता है। आप चाहे अगर जनवरी में भी शामिल होंगे तो 1 जून को वापस से आपको आपका अगला साल शुरू होगा और आपको पूरा प्रीमियम देना होगा। तो इसका जो फिक्स्ड टेन्योर है, फिक्स्ड इसका ड्यूरेशन है, और इसमें कुछ चीजें मेरे ख्याल से मोटे तौर पे ये उन लोगों के लिए जरूर ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनको किसी तरीके की सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है, उनके लिए एक न्यूनतम राशि में, क्योंकि 330 रुपए सालाना यानी रोजाना का अगर माना जाए तो तकरीबन 1 रुपया से भी कम पर इस बीमा योजना का चयन किया गया है, जो इसका निर्धारण किया गया है। और उसमें 2 लाख रुपए की एक ऐसी समुचित राशि है कि किसी भी आपदा की स्थिति में अगर व्यक्ति इस अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके आश्रितों को फौरन त्वरित लाभ मिल जाए। एक इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इस बीमा योजना को लेने के लिए किसी प्रकार की मेडिकल जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टर्म प्लान जो अलग अलग कंपनियां देती हैं उसमें एक अनिवार्य शर्त होती है कि व्यक्ति का मेडिकल जांच की कराई जाती है कि उसे गुजरना पड़ता है उसको। तो इसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। अच्छा उदयन, क्या माना जाए कि सपोज इस तरह से जो बीमा जो कोई व्यक्ति लेता है वो एक व्यक्ति एक ही बीमा ले सकता है या एक से ज्यादा ले सकता है? क्योंकि बहुत कम धनराशि है तो कुछ व्यक्ति इस बारे में सोच सकते हैं कि मैं एक से ज्यादा ले सकता हूं, तो क्या ऐसा संभव है? इस स्कीम के तो आप नहीं ले पाएंगे। इस स्कीम से आपके परिवार का कोई अगर वो कमा रहा हो, वो प्रीमियम देने के जिसका बचत खाता हो वो अलग से ले सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति के लिए। पर ये एक जब आपके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसके पास है वो दूसरे जो है बीमा योजनाओं में जा सकता है, जीवन बीमा योजना भी ले सकता है। तो ये एक आप सोचिए कि एक एंट्री पॉइंट है, मतलब प्रवेश द्वार है आपके जो वित्तीय सुरक्षा जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कहते हैं, उसका पहला पायदान है। उस पहले पायदान में लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। उसके बाद जैसे लोग एक्सपर्ट्स कहते हैं, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाती है, आपको अपना जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, वित्तीय जो सुरक्षा है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप फिर कहीं और जाके आप एक और टर्म प्लान ले सकते हैं, कवरेज को बढ़ा सकते हैं। पर पहला कदम जो लोग वंचित रह रहे थे, जो उनके हाथ में आ नहीं पा रही थी, जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा उनको अपने परिवार को देना था, वो नहीं आ पा रहा था। तो जो आर्थिक रूप से जो हिस्सा था प्रीमियम वाला, वो उन्होंने इंतजाम कर दिया। 330 रुपये जैसे आपने कहा, 1 रुपये से भी कम बन रहा है। दूसरा मेडिकल का हिसाब किताब यहाँ पे अलग रखा गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेडिकल का टेस्ट होने के बाद अंडरराइटर जो होता है वो उस हिसाब से प्रीमियम को बढ़ा देता है। पर सरकार यहाँ पे अंडरराइट कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, हम आपको बस इतना ही देना पड़ेगा। तो एक जो सेफ्टी नेट, एक मूलभूत एक जो सुरक्षा जो देने की जरूरत है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या पेंशन हो या ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे मिलके एक जाल सा बना रहे, एक ढाल सा बना रहे हैं, तो एक आम भारतीय के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय जो हैं जिनके पास ये सब नहीं है, वो इन चीज़ों का इंतजाम जरूर करें।
There's also the requirement of declaring who the nominee is, the beneficiary Absolutely. under this trust account, which is Absolutely. insurance scheme. Absolutely, that's very important to put, and this obviously is a very key requirement for this scheme. Well, you're listening to Money Matters on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel, and through email ID moneymatters.air@gmail.com. And tomorrow's topic of discussion is checklist for beginners investing in the stock market. Once again, the topic is checklist for beginners investing in the stock market. Today we are discussing Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Just coming back to this insurance scheme, there's also the principle of subrogation and sharing. So if an applicant has more than one insurance cover, then the liability is also shared between the insurance companies when it comes to payout. But under this scheme, it is a lot simpler because it is a one-stop shop for getting a benefit of 2 lakh rupees to the nominee under the scheme. Yeah, in case of the principle is this, that in terms of insurance, that you cannot put a a value to life. Okay, so nobody can profit from somebody's death, even the family. But because there is no limit, so you can take as much. But that's where moral hazard comes in. You cannot go for an insurance cover for which you cannot pay premiums. Okay, so that's the balance that has to be kept. Unlike health insurance and other plans where you cannot profit if you have a 10 lakh sort of cover across various companies, and they'll divide it among themselves in terms of the amount that will indemnify. Your damage is being. But isn't the Ayushman Bharat for the health scheme whereby there's a beneficiary? Yeah. But in this case, you can go for as many life insurance plans as you can. Okay. So assuming that you start with this plan, and then you think that my income has gone up, and I've got a kid. I've got a child and so some other dependent. Identifying the different risks. Absolutely, and then you can actually go for another insurance plan. So how will this operate? So suppose the gentleman or the lady is working with a self-help group, okay, and the LIC sort of says that for the self-help group members we're going to give a group life insurance plan. So the people who start with this Jeevan Jyoti scheme can actually also avail of that benefit as well. So on the road you can actually keep picking up, and you will be assessed for your risk collectively or individually, and the premiums will be set. But what this particular scheme does, it makes it really, really easy. As you've very, very rightly pointed out, there's no medical, there's only 330 rupees annually. These makes it really, really easy to access. उदिन, जैसे अभी हमने बात करी कि इस का लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो इसके लिए जरूरत क्या है, किस तरीके से इस बीमा योजना में शामिल हुआ जा सकता है. जिस तरह से अर्जुन ने बताया कि आपके लिए पास इसके लिए सबसे पहले एक बचत खाता किसी भी बैंक में होना चाहिए. आप वहां पे जाके संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का प्रीमियम, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था, हमने चर्चा की थी कि इसका प्रीमियम सीधे सीधे आपके बचत खाते से हर वर्ष कटेगा एक नियत तिथि को. और इसकी जैसे कि अभी भी इस बारे में भी हमने चर्चा करी, तो अगर इसको पूरी तौर पे इसका सार या समराइज किया जाए तो 18 साल से 50 साल तक की आयु का इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी शामिल हो सकता है. प्रीमियम नियत है 330 रुपए सालाना, जिसके अलावा इसमें एक मामूली सा प्रशासनिक शुल्क और इसमें कर लगेगा. इसके अलावा आपके पास एक बचत खाता होना चाहिए जिसमें हर वर्ष 1 जून को इसका प्रीमियम काटा जाएगा. उस समय आपके खाते में इतनी धनराशि होनी चाहिए अगर आपको ये पॉलिसी चलानी है. किसी भी समय आप इस पॉलिसी से अलग हो सकते हैं, इसके लिए कुछ वो नहीं है. जिस तरह से हमने बात करी, क्योंकि ये एक पूर्णतः टर्म प्लान है जिसमें किसी भी तरीके की मैच्योरिटी का लाभ नहीं मिलता है. इसमें भी उसी तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक सुरक्षा के लिए ये योजना है. इसमें जो अगर किसी व्यक्ति की, बीमित व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो एक सिंपल क्लेम फॉर्म इसके लिए जरूरी होगा जिसके साथ सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी और जो भी उसका नॉमिनी होगा वो उसके सीधे सीधे बैंक अकाउंट में इस राशि का भुगतान हो जाएगा.
मोटे तौर पे अगर माना जाए तो इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें आप किसी भी समय शामिल हो सकते हैं, किसी समय एग्जिट कर सकते हैं, जी। क्योंकि इसमें कोई भी मतलब जीवित व्यक्ति को लाभ नहीं है, तो आपकी जब तक स्थिति हो आप इसका लाभ लें। एक बात जो अभी अर्जुन ने भी कहा कि क्या जिस तरह से शुरुआत में मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 20 साल की उम्र में इसमें शामिल होता है, उसकी स्थिति अच्छी होती है, वो अन्य बीमा योजना का लाभ लेता है, तो क्या दोनों लाभ उसको एक समय में प्राप्त होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। दोनों अलग अलग योजना है, वो आपको वंचित नहीं करता है। और लेकिन ये वाली योजना जो है एक व्यक्ति एक ही बार में क्योंकि देखिए आप उनका उसका प्रीमियम कितना कम है, और आपको मेडिकल की भी मेडिकल टेस्ट की भी वो छूट मिली है, तो ये नेचुरली एक तरीके से ये एक सरकारी बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वो बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा आम नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत दायरा प्रदान किया जा रहा है, 1 रुपया से भी कम दैनिक रोज पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। Basically, the risk of death is being covered under this particular scheme. Absolutely. See if you look at the various elements that you've been covering in this program, this is the risk of dying too early, getting ill and your finances getting damaged, living too long, which is pension. So the government actually through market, instead of giving a handout, these are all market based instruments, and so basically, and you're making the person participate, so you're actually encouraging the person, even if it is 300 rupees, 330 rupees, Arjun, you'll agree a person has a stake in it. So next year the person goes and pays those 330 rupees. So there's a financial behavior that you're encouraging, making the person aware of some of the things that need to be done. Plus the premium is being collected into a pool, which is again being reinvested into market securities, and there's a return on that investment. Absolutely, and it's a huge pool, and that's why LIC, because LIC has got such a huge pool of people, whom it's insuring. That's why it's giving it the muscle to provide this product at such a low premium. So it's like a huge pool that's being used, and the benefit everybody is getting. एक चीज की और चर्चा करना चाहूंगा उदयन इस बीच में, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग का हो जो इसमें शामिल होता हो, बीच के कुछ समय वो इससे बाहर हो जाता हो, क्या इस योजना में दोबारा लौट सकता है? बिल्कुल लौट सकता है, और आप देखेंगे कि इसके जो थोड़े से अंदर जाके कुछ और कंडीशंस हैं। मान लीजिए आप मिस कर गए, 330 रुपए किसी वजह से रहे नहीं आपके पास, या आपके अकाउंट में अगर नहीं है, जो नहीं कटे, जो कभी होगा नहीं, पर और मान लीजिए आपको दिसंबर में इस अब 1 जनवरी से आप करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप 330 रुपए नहीं देंगे, क्योंकि ये जैसे कि आपने बताया कि मई 31 तक है, तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 150 रुपए के आसपास कुछ देना पड़ेगा। फिर दोबारा आप जब 1 जून से स्टार्ट होगा अगला जो 1 साल का, तब आप 330 रुपए देंगे। तो इस टाइप का ये ग्रेडेशन भी हो रखा है, तो डिपेंड करता है आप ज्वाइन कब करते हैं, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम सेट होता रहे। जो बचत खाता जिसको इससे लिंक करना है, क्या उसके लिए जनधन खाता होना जरूरी है? ऐसी भी कोई नहीं, आप कोई भी बचत खाता है, कोई लिंकेज, इट्स जस्ट खाता, बचत खाता होना चाहिए। आपका मोबाइल फोन काम करना चाहिए, जो कि सबका करता है, और क्योंकि आधा जो वो होगा इंफॉर्मेशन आपको सूचना आएंगी वो मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब आपको अपने बचत खाते का ध्यान रखना है, उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें, आधार कार्ड और आपका मोबाइल जो है वो आपका कार्यरत होना चाहिए, और आप उसको साथ संभाल उसकी करते रहें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए। और समय पे मतलब 1 जून के आसपास जब इसका प्रीमियम कटे, तो आपके खाते में इतनी धनराशि जरूर हो जो इसका प्रीमियम, सालाना प्रीमियम आपके अकाउंट से कटता रहे, और आप इस लाभ से वंचित न हो पाए, आप इस पूरी तरह से इस लाभ में रहें। So effectively, this is a tie-up between banking and insurance under the financial inclusion objective of the government, the Jan Dhan Yojana, and now of course the Jeevan Bima Yojana as well, along with Ayushman Bharat. Absolutely, and again, instead of every state giving one separate scheme, and the center generally checking things around, the idea is to give one big push. Of course the states can give a scheme, as I mentioned, the LIC has been LIC and others, they have been doing giving group insurance, life insurance to self-help groups, but all these things can be done simultaneously. Thank you so much, Udayan, for being with us on the Money Matters today. Thank you so much.
And before we close, a reminder, tomorrow's topic of discussion, which is checklist for beginners investing in the stock market. So do stay tuned on this program, and that's it in this edition of Money Matters. And before we wind up, do remember our email ID, which is moneymatters.air@gmail.com. Till then, namaskar and goodbye. समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। परिक्रमा के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी के साथ मैं नवीन सक्सेना। नमस्कार तन्वी। नमस्कार नवीन, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? तन्वी समझ गई। आज ये जो गजल आप सुन रहे हैं, ये जो शेर आप सुन रहे हैं, ये शब्द हैं गालिब के। और गालिब के बारे में शायद ही ऐसा हो जो नहीं जानता हो। प्यार मोहब्बत में जो पढ़ा है वो तो जानता ही है, कॉलेज से निकला है तो भी जानता ही है, और कॉलेज की किताब में जो खुशबू भरे फूल है ना, वो गालिब की ही याद दिलाते हैं। और याद दिलाती हैं दिल्ली की तंग गलियां जिसमें बिखरे हुए हैं गालिब के शब्दों की खुशबू। गली मीर कासिम जान की गलियां इतनी तंग और संकरी है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को धक्का देते हुए निकलता है। और इसी गली का एक और सिरा है वो मिर्जा गालिब की हवेली तक पहुंचता है। गालिब के शब्दों की खुशबू अभी भी वहां बिखरी हुई है, और बात इसलिए क्योंकि आज गालिब की जयंती है। That's right, birth anniversary of a poet that has given a lot to Urdu poetry. आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। और तन्वी, उर्दू शायरी की किसी शहंशाह सी खासियत रखने वाले गालिब का जन्म यूं तो आगरा में हुआ था, लेकिन अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने बल्ली मारान की गली मीर कासिम जान में बनी हवेली में बिताया था। और यहाँ की दरो दीवार में हर तरफ उनकी यादें हैं। गालिब की यादों को संजोते हुए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने वर्ष 2011 में गालिब संग्रहालय की स्थापना की थी। और हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि मिर्जा गालिब की पहचान किसी की मोहताज नहीं है। गालिब ने अपने दौर में वर्षों तक भारत पर राज करने वाले मुगलों की सल्तनत के तख्त को उजड़ता हुआ देखा। 1857 के उस विद्रोह को करीब से देखा जो पश्चिम बंगाल से शुरू होकर मेरठ से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा। और गालिब शुरुआत में फारसी में अपनी नज्म लिखते थे, लेकिन बाद में अपने ससुर के कहने पर उन्होंने उर्दू में नज्म लिखना शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि पहले वो असद के नाम से लिखा करते थे। तो उनके ससुर जी ने कहा कि भाई असद के नाम से तो आपको कोई जानता नहीं है, तो फिर उन्होंने बाद में गालिब के नाम से लिखना शुरू कर दिया। और ये उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले गालिब का एक आध शेर तो कोई जानते ही होंगे। Definitely, yes, a great Urdu poet occupying a place of pride in world literature. Also one of the most quotable poets, having shares for almost everyone in almost every situation of your life. So with that remembrance of Mirza Ghalib, it's a warm welcome to all of you on a late afternoon news magazine परिक्रमा। परिक्रमा में आज मैं हूँ आपके साथ तन्वी तनेजा, और मेरे साथ है नवीन। नवीन, अब हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, तो शुरुआत आपसे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे रहा है।
आज शिमला में एक रैली में गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में 4 परमवीर चक्र विजेता हैं। श्री शाह ने देश के लिए बलिदान देने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के साहस और बलिदान को नमन किया। Yes, and this rally was organized to mark the completion of 2 years of Jairam Thakur-led BJP government in the state. Mr. Shah accused Congress of misleading people on Citizenship Amendment Act and said the CAA has no provision to take anyone's citizenship away. मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहना चाहता हूँ, इस देश के बिल के अंदर, एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान है। कृपया आप अपप्रचार मत करिए, देश की शांति को मत तोड़िए, लोगों को गुमराह मत करिए। Yes, that was Union Home Minister Amit Shah appealing to people for peace. BJP Working President JP Nadda, Union Minister Anurag Thakur and Chief Minister Jairam Thakur also spoke on the occasion. अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या 1.25 अरब को पार कर गई है और तन्वी आज देश के 125 करोड़ निवासियों के पास अपनी विशिष्ट पहचान का प्रमाण आधार संख्या के रूप में उपलब्ध है और इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना 3 करोड़ अनुरोध प्राप्त होते हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जहां पूरा का पूरा भारत जो है अब एक संख्या से जुड़ता जा रहा है और हर का जो है लेखा जोखा जो है अब सरकार के पास है। True. In Uttar Pradesh, situation in the entire state continues to remain peaceful amidst elaborate security arrangements in sensitive areas. As a precautionary measure, internet services have been blocked in around 21 districts, including state capital Lucknow, Aligarh, Agra, Mathura and Bulandshahr since last night. State DGP OP Singh said Section 144 has been imposed in the entire state. Our correspondent reports that till now there are no reports of any untoward incident and police are continuously appealing to people to remain calm. लेकिन तन्वी वहीं जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में 5 महीने के बाद इंटरनेट सेवाएं जो है वो बहाल कर दी गई हैं। राज्य की 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और स्थानीय नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो सावधानी और जिम्मेदारी से करें। Yes, Union Minister Hardeep Singh Puri has said that the Citizenship Amendment Act (CAA) does not alter India's secular credentials. He accused opposition parties of spreading misinformation on the new law. In a tweet, Mr. Puri said, the CAA neither alters nor challenges the rights of any Indian citizen irrespective of religion, caste, creed, sect, ethnicity or race. He said, the narrative that it threatens religious minorities in India is ignorant at its best and treacherous at its worst. कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा भी, जब जाएगा तभी तो नया कुछ आएगा ना। हर किसी की एक रिटायरमेंट एज होती है जिसके बाद उसके काम करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है करगिल युद्ध के दौरान 1999 में मुख्य भूमिका निभाने वाले MiG-27 के साथ। आज उसने अंतिम बार उड़ान भरी और इन लड़ाकू विमानों ने 3 दशक से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है। कई दशकों से वायुसेना के लिए ये विमान हवाई हमलों की रीढ़ की हड्डी रही हैं। वायुसेना जोधपुर वायुसैनिक अड्डे से 7 विमानों के स्क्वाड्रन को आज अंतिम विदाई दी गई। Yes, MiG-27, which proved to be an ace attacker during the 1999 Kargil war, rode through the skies for one last time today after serving the Indian Air Force for over 3 decades. The swing wing fighter has been the backbone of ground attack fleet of the Air Force for several decades, and the Indian Air Force bid adieu to its squadron of 7 aircraft from the Jodhpur Air Base. And sad news also came in today from Kazakhstan, where a plane crashed shortly after takeoff early this morning, killing 14 people while 35 others survived with injuries. The Baik aircraft hit a concrete fence and a 2-story building after takeoff from Almaty International Airport. The airport officials said there was no fire and a rescue operation got underway immediately following the crash. The plane was flying to
Nur Sultan, the country's capital, formerly known as Astana. And sad news coming from Iran today as well. A 5.1 magnitude earthquake struck the country today. The epicenter was 45 kilometers east of the Bushehr nuclear power plant on the southwest Gulf coast. There were no immediate reports of any damage. वापस आते हैं भारत की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के बलांगीर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। मौसम हालांकि खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी उपराष्ट्रपति की ओडिशा यात्रा रद्द हो गई। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बलांगीर में जनसमूह को संबोधित किया। Yes, and we are still with Odisha. The Bhubaneswar-New Delhi Bhubaneswar Rajdhani Express, which has been transformed with the display of Odisha's art, culture and heritage, was flagged off by the Union Minister Dharmendra Pradhan. The train has been draped in high-quality designs on vinyl wrapping, showcasing dance forms, archaeological monuments, traditional Pattachitra and flora and fauna of Odisha. East Coast Railway and National Aluminium Limited Company had signed an agreement in this regard. On this occasion, the minister also launched unreserved train tickets in Odia language, which will be available at 317 stations across the state. और अब मौसम की बात भी कर लेते हैं। समूचा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की शीतलहर की चपेट में और तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। आज दिन भर भी दिल्ली में तो फिलहाल कुछ ऐसा ही मौसम रहा। हालांकि दोपहर को कुछ धूप के दर्शन जरूर हुए थे, लेकिन वो भी इतनी तेज नहीं थी कि आप विटामिन डी को थोड़ा सा अपने अंदर ले सके। खैर, पूरा लद्दाख जो है वो फिलहाल तेज शीतलहर की चपेट में है। न्यूनतम तापमान जो है वो लेह में 0 से 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे और द्रास में 0 से 32.2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। अब देखिए ना, हम यहाँ पर 5 डिग्री और 6 डिग्री सेल्सियस में कपकपा रहे हैं और लेह और द्रास में क्या हाल हो रहा होगा ये आप ही जानते हैं, लेकिन फिर भी वहां भी हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं। बिहार की बात करें तो तेज हवाओं के कारण राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में है। ठंड के कारण कई जिलों के सरकारी स्कूलों में कक्षाएं रद्द कर दी हैं। मध्य प्रदेश पर आ जाए तो बारिश, धुंध और शीतलहर ने मौसम को बहुत सर्द बना दिया है। हरियाणा और पंजाब में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई स्थानों पर जो तापमान है तभी वो 0 से भी नीचे चला गया है। और मौसम विभाग कहता है कि भाई अगले कुछ दिनों में शीतलहर के प्रकोप में फिलहाल कोई कमी आने की संभावना नहीं है, इसलिए नए पुराने जितने स्वेटर जैकेट है ना निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। Definitely, yes, keep yourself covered, yes. खराब मौसम के कारण खैर उत्तर भारत में 21 रेलगाड़ियों जो है वो 6 घंटे से भी अधिक देरी से चल रही है और राजधानी में आज न्यूनतम 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल रात 3 डिग्री नीचे था। और मौसम विभाग एक बहुत अच्छी बात बताता है, वो ये कहता है कि दिल्ली में 1901 के बाद दूसरी बार दिसंबर का महीना इतना सर्द रहा है और आने वाले दिनों में तापमान के और गिरने की संभावना है, तो ख्याल रखिएगा। Chilly winters. In Parikrama, every day we bring you science-related stories. Some are for the goodness, the betterness of our health, some are alarming, and today we are going to feature a positive story, if I may say. Well, cancer these days is a very common disease. Naveen, pehle to itna nahi sunne ko milta tha, but every day now we hear more and more people are being affected by this infectious disease. और पहले ऐसा लगता है कि जैसे जब स्टोरी सुनने को आती थी या खबर आती थी तो शायद किसी गरीब को कैंसर की बीमारी होती थी, या जनरली हम फिल्मों में ही सुना करते थे कि किसी हीरो या हीरोइन को कैंसर हो गया। लेकिन अब जो है लगातार खबरें आती जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर जो है ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जिसपे कैंसर का इलाज है और लोग जो है बहुत आगे बढ़ चढ़कर बाद में जीवन को अपना लेते हैं। Yes, lifestyle changes are we talking about. So our science-related story today mentions that engaging in recommended amounts of leisure time physical activity is linked to a lower risk for 7 types of cancers, according to a review of studies. The researchers said while physical activity has been associated with a lower risk of several cancers in previous studies, the relationship between recommended amounts of it have not been particularly associated with cancer risk. According to the researchers, 2.5 to 5 hours per week of moderate intensity activity or 1.25 to 2.5 hours per week, remember per week, of vigorous activity is recommended. So
You should hit the gym at least once in a week or go to the park and walk once in a week. So moderate intensity activities, they explained, are those where a person moves fast enough to burn off 3 to 6 times as much energy per minute as sitting quietly, and vigorous intensity activities burn more than 6 METs, which is energy per minute. यानी कुल मिला के अगर खाका खींचा जाए और तस्वीर खींची जाए तो यही निकलता है कि भाई आपको ना सुस्त नहीं बैठे रहना है, थोड़े थोड़े बाद चल लीजिए। हाँ, आपके पास इतना बढ़िया मोबाइल है, उसमें एक अलार्म लगा लीजिए जिसमें हर आधे घंटे बाद वो आपको एक वेकअप कॉल दे और कहे कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको उठ के चलना है, और कम से कम इतना तो चलना ही है जितना तन्वी ने बताया था कि हफ्ते की आप उतनी वॉक तो पूरी कर ले। और वैसे भी अब तो मोबाइल के अंदर स्टेप काउंटर्स हैं, तो मान के चलिए आपको दिन भर के कम से कम 5 से 10,000 स्टेप्स तो चलने ही है अगर आपको कैंसर और इसकी जैसी बहुत सी बीमारियों से बचना है। इंडीड। तो रिपीट कर दें एक बार, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज METs 2.5 to 5 hours per week and 1.25 to 2.5 hours per week of vigorous activity is recommended. और अगर मैं और तन्वी बात करें तो कुल मिला के हम दोनों ने 2,500 स्टेप सुबह से अब तक तो चल ही लिए हैं। Yes, but इतना बात मैं कह दूं नवीन कि हमें ना उस फिगर पे नहीं जाना चाहिए बहुत, क्योंकि समटाइम्स हम देख लेते हैं कि हाँ अरे हो गया, बट वी डोंट नो दैट हैव वी वॉक्ड देम एट अ स्ट्रेच और हैव वी जस्ट वॉक्ड देम इन द एंटायर डे। पर तन्वी अगर उस फिगर पे नहीं जाएंगे ना तो हमारा फिगर ठीक होने में वक्त लग जाएगा, इसलिए हमें फिगर की तरफ भी ध्यान देना ही है। फिलहाल ये बात हुई न्यूमेरिकल एंड द अदरवाइज। फिलहाल ये बातें विज्ञान से जुड़ी उन बातों की जो आज हिस्सा रही हमारी परिक्रमा का। और आइए अब आपको लिए चलते हैं देश के उन हिस्सों में जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरे भारत वर्ष में। देखिए, हमारे देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम खेती से होने वाली जो आय है या उससे जो उत्पादन है उससे देश को तो आगे ले ही जाएं, देश को तो हम संपन्न करें, लेकिन खुद भी हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए। और खेती से होने वाली आय में वृद्धि भी होनी चाहिए, और ये बहुत सारे तरीकों से हो सकती है कि किस तरह की आप फसल उगाएं, कितने तरीकों से फसल उगाएं, और सबसे बड़ी बात है फसल उगाने के बाद आप उसको मंडी तक कैसे पहुंचाएं। अब जब बात मंडी की आती है तब आप अगर भारत की बात करें या उससे लगे हुए भारत के दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां तक जाने ले जाने में पहुंचाने में कितना खर्च होता है और उससे कितनी आमदनी होती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या कभी तन्वी आपने सोचा है कि हमारे देश का करेला देश के बाहर भी बिक सकता है? बिल्कुल, यही स्टोरी वी आर फीचरिंग नेक्स्ट। इट्स अ ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी फ्रॉम औरंगाबाद वेयर गणेश दांडगे, a farmer, is exporting its produce of bitter gourd करेला to the markets in Europe. सुनते हैं हर्षवर्धन दीक्षित को। खेती से होने वाली आय में यदि वृद्धि करनी है तो केवल उपज लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपनी उपज का योग्य दाम मिले, इसके लिए योग्य बाजार का चयन करना भी जरूरी है। औरंगाबाद जिले में छोटा सा गांव है वरुण काजी। यहाँ के किसान गणेश दांडगे की खेती में उगाए करेले सीधे यूरोप के बाजार में बेचे जाते हैं। अपनी 9 एकड़ खेती में से लगभग 2.5 एकड़ पर गणेश ने करेले के पौधे लगाए। 2 महीने की देखभाल के बाद इनमें करेले लगना शुरू हुआ। पिछले 4 साल से करेले पैदावार का अनुभव होने के कारण अब गणेश के करेले एक्सपोर्ट क्वालिटी के बन गए हैं। इसलिए गणेश को अपने करेले बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता। सब्जियां यूरोप पहुंचाने वाली कंपनी सीधे गणेश के खेत से करेले खरीदती है और रोजाना लगभग 2 टन करेले गणेश के खेत से अहमदनगर में बने कंपनी के प्रोसेसिंग यूनिट में जाते हैं। यहाँ करेलों पर कीटाणु शोधन प्रक्रिया होने के बाद ये करेले मुंबई से सीधे यूरोप पहुंचते हैं। लोकल मार्केट में जहां इन करेलों को 15 रुपए प्रति किलो भाव मिलता है, वहीं एक्सपोर्ट करने पर ये करेले 24 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे जाते हैं, वो भी मार्केट फीस या यातायात के खर्चों के बिना। अपने 2.5 एकड़ के खेत में इस बार करेले की लगभग 40 टन उपज होने की गणेश को उम्मीद है और 24 रुपए किलो की दर से ये 40 टन करेले गणेश की आय में निश्चित ही वृद्धि करेंगे। परिक्रमा के लिए औरंगाबाद से मैं हर्षवर्धन दीक्षित। Interesting story. Well, who would have thought that producing Karelas would be so beneficial for this farmer of ours from Aurangabad? Bhai, if you don't know, let me repeat it for you.
Eating Karelas is actually very healthy for you. It packs several important nutrients. Karela is especially rich in vitamin C. It's also high in vitamin A, and it helps to decrease your cholesterol levels, and it may also help you to reduce weight. तो भाई करेला न सिर्फ नीम चढ़ा है ना, तो करेला आपके लिए बहुत जरूरी है, ये तन्वी ने आपको बताया। अब आपको लिए चलते हैं हम सीधा गोवा की ओर। अब अगर गोवा की बात करें तो गोवा का नाम आते ही उसके बीचेस नजर आने लगते हैं हमारे को, वहाँ की सैंड नजर आने लगती है, वहाँ की मौज मस्ती नजर आने लगती है। और अगर ये बात करें तो आपको भी यही लग रहा होगा कि भाई साल का आखिरी दिन है और एकदम जिसे कहते हैं ना कि फेस्टिव मूड चल रहा है, तो गोवा की हम फेस्टिवल की बात करेंगे। बस यही आप थोड़े से गलत हो जाते हैं। देखिए गोवा के अंदर और भी बहुत कुछ, और वो है गोवा की खेती, गोवा का एग्रीकल्चर सिनेरियो। वो कैसा है उसको भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। तो लीजिए चलते हैं हम सीधा पणजी मुकेश थाली के पास। Goa, being a small state, is dependent on its neighboring states for milk, poultry and vegetables. Rice that is cultivated in the rains from June to September is the major crop, followed by cereals like pulses and small millets. Tareka nut, coconut, cashew are the other major plantation crops here, and the garden crops include pineapple, mango, bananas and jackfruits. Mr. Arun Priyodkar spoke in details about the agriculture scenario of Goa. Agriculture sector at national and global level is witnessing rapid changes besides facing major challenges. The food habits of the consumers are changing and the demand of the agriculture commodities is on a rise. At the same time, the climate is changing and the productive land is stagnated. The emerging challenges and opportunities call out for a change in the innovation-driven field of agriculture. The subsistence agriculture in the state is shifting to a high-value commercial enterprise. The cultivation of high-value horticulture crop is gaining importance due to better returns, lower risk and tolerance of these crops for a part-time farming. Agriculture mechanization has experienced a tremendous growth over the last few years. Due to widespread modernization visible in the agriculture sector, farming communities have started employing agro equipment. This is done in various domains of cultivation like tillage, sowing, irrigation, transplanting, plant protection, threshing, etc. The Department of Agriculture of Goa State has formulated various schemes, and zonal agricultural officers go in various talukas and guide the farmers about the latest technology, schemes and cultivation methods. Mukesh Thali for Parikrama from Panaji, Goa. तो अभी हमारे देश के कई रंग हैं, कई संस्कृतियां हैं, कई तरह के लोक लुभावन लोग भी हैं। और आज मेरा मन कर रहा है शायद ये बोल दूं कि थिरकेगा देश आदिवासी थाप पर। बिल्कुल, थिरकेगा देश आदिवासी थाप पर। We are talking about the rich tribal dances of our country, and why we are talking about it because Chhattisgarh will host National Tribal Dance Festival from today till 29th of December in the Science College ground in Raipur, and the event is being organized for the first time. More than 1,300 participants from 25 states and union territories are participating in the 3-day dance festival, and 29 tribal troops will present more than 43 styles of 4 different tribal dance forms. Not only this, delegates from 6 other countries, श्रीलंका, बेलारूस, युगांडा, बांग्लादेश, मालदीव, थाईलैंड और इनके कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो अगर आप रायपुर में हैं इस समय या रायपुर की तरफ जा रहे हैं तो हाँ, इस फेस्टिवल में जरूर शिरकत कीजिएगा और देखिएगा कि हमारा आदिवासी कल्चर जो है ना वो भी बहुत रिच है। फिलहाल रायपुर लिए चलते हैं आपको विकल्प शुक्ल के पास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव में देश के 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अलावा बेलारूस, श्रीलंका, मालदीव, युगांडा सहित 6 देशों के 1300 से अधिक जनजातीय कलाकार शामिल हो रहे हैं। ये लोक कलाकार विवाह, फसल बुआई, फसल कटाई जैसे अवसरों पर आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों को पेश कर रहे हैं। दिन के इस नृत्य महोत्सव में करीब 40 लोक दल 4 विभिन्न विधाओं में 43 से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
हमारे देश के हर कोने में नए साल का आगमन की जो धूम है वो पूरी तरह से छाती जा रही है और लद्दाख के लोग हैं जो वो लद्दाखी नया साल लोसर जो है वो आज बहुत धूमधाम से बना रहे हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल आके माथुर ने आज लेह में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और लेह पर्वतीय परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। तो बिना किसी देरी के हम सीधे आपको लद्दाख से जोड़ देते हैं, जहां पे रमेश है जो बता रहे हैं कि क्या कुछ रहा आज इस लद्दाख फेस्टिवल में। During the minus 20 degrees temperature in Leh, including LG RK Mathur, people have gathered in traditional attire for Losar celebrations at Chokanga Vihara. Celebrations began with puja for world peace and brotherhood. LG RK Mathur paid homage to Buddha Dharma. He also hoisted the traditional flag Tarchen to mark the beginning of new year. Artists from various parts of Ladakh region performed cultural programs and traditional events relating to Losar. After realizing 70 years dream for Union Territory status, this year Losar is special for Ladakh. People and administration took pledge for the overall development of Ladakh region on the Losar. Ramesh Chandra, All India Radio News, Leh. With that spirit of festivities of our country, we wind our segment of Correspondence Corner. And now in Parikrama, let's get updated with the business news of the day from Anita Anand. Equity benchmarks today snapped losing streak of 3 sessions. Sensex and Nifty both gained around 1% amid positive cues from global markets. Sensex at Bombay Stock Exchange climbed 411 points to close at 41,575. Nifty at the National Stock Exchange also surged 119 points to settle at 12,246. The rupee forex market weakened marginally by 4 paise to 71 rupees and 35 paise in the late afternoon deals. Gold prices today rose by 44 rupees to 39,731 rupees per 10 grams in the national capital. Silver prices, however, fell by 460 rupees to 47,744 rupees per kg. With Sanjeev Kumar Singh, Anita Anand for Parikrama. और अब खेल जगत की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिव्या। भारत की अंडर 19 टीम ने ईस्ट लंदन के बुफेलो पार्क में पहले युवा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। कल रात पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 38 ओवर में 3 गेंद में 187 रन बनाए। भारत ने मजबूत शुरुआत की और 42 ओवर 3 गेंद में 1 विकेट पर 190 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है। भारत की तरफ से आरंभिक बल्लेबाज दिव्यांश सक्सेना 86 रन बनाकर नाबाद रहे। एन तिलक वर्मा ने 59 रन का योगदान दिया। इन दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने 127 रन बनाकर मैच पर पूरी पकड़ बना ली। रवि बिश्नोई ने 3 जबकि कार्तिक त्यागी, शुभांग हेगड़े और अथर्व अंकोलकर ने 2-2 विकेट लिए। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को होगा। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के साथ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 467 रन का बड़ा स्कोर बना लिया और स्टंप्स तक मात्र 44 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 2 विकेट भी गिरा दिए। मेलबर्न में ट्रेविस हेड ने 114 रन और कप्तान विकेटकीपर टिम पेन ने 79 रन की पारी खेली। और अब याद करते हैं उन लोगों को, उन हस्तियों को जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से। और तन्वी, अगर आज अगरतला भारत का हिस्सा है तो उसका श्रेय जाता है एक आदिवासी सैनिक अल्बर्ट इक्का को। इक्का का जन्म आज के दिन सन 1942 को झारखंड के गुमला जिले के डुंगरी ब्लॉक जरी गांव में हुआ था। साल 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई को कोई शायद ही भूल सकता है। युद्ध भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच था, लेकिन इस जंग ने एक नई जिंदगी दी बांग्लादेश को। भारत ने अपने न जाने कितने सैनिक गंवाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। इन्हीं सैनिकों में से एक थे लांस नायक अल्बर्ट इक्का, जिनके बलिदान ने बांग्लादेश को तो स्वतंत्रता दी ही, साथ ही अगरतला को भी पाकिस्तान में मिलने से बचाया। और आज अगर अगरतला हिस्सा है तो उसका श्रेय आदिवासी सैनिक अल्बर्ट को जाता है। तीर कमान चलाने में माहिर थे और हमेशा से ही देश की सुरक्षा बल में शामिल होने का एक सपना देखते थे। बचपन से ही वो खेल में भी बहुत अच्छे थे और इसी के चलते उन्होंने सेना में शामिल होने की ठान ली और फिर उसके बाद इतिहास बन गया जिसे आज हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो कोई तलवार का। Yes,
Yes, Paramveer Chakravarti Lance Nayak Albert Ekka was martyred in action in the Battle of Hilli during the Indo-Pakistan War of 1971. Moving on, today we are wishing a happy birthday to a star whose popularity is beyond our country, Abdul Rashid Salim Salman Khan. जिसकी यात्रा जर्नी शुरू हुई थी फिल्म मैंने प्यार किया से। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और उस फिल्म को शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कम से कम 2 बार से ज्यादा तो नहीं देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक डायलॉग पहले सुन लेते हैं सलमान खान के, उनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों के। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। मोटे वाले उस तरफ, पतले वाले इस तरफ और फिट वाले मेरे पीछे। पुलिस वाले को ठुकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। Yes, memorable films he has been part of, starting from हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं, दबंग, रेडी, एक था टाइगर, किक, सुल्तान, टाइगर जिंदा है। सवालों का जवाब इस परिक्रमा में मिल गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई एक सवाल रहता है तो हम आपको बता दें कि आप जा सकते हैं सीधा नेशनल फूड फेस्ट, जहां पे खाइएगा, मौज उड़ाइएगा। 27 से 29 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। सारे सवालों जो हैं उनका तो जवाब जो बचे खुचे हैं ना, वो भी मिर्च मसाले के साथ मिल जाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए परिक्रमा समाप्त करने की मुझे यानी नवीन और तन्वी को। नमस्कार। नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या 1.25 अरब को पार कर गई है। आज देश के 125 करोड़ निवासियों के पास अपनी विशिष्ट पहचान का प्रमाण आधार संख्या के रूप में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत से अब तक 37,000 करोड़ बार पहचान के सबूत के आधार में सेवा का उपयोग किया जा चुका है। इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना 3 करोड़ अनुरोध प्राप्त होते हैं। लोग आधार विवरण को अद्यतन रखने के लिए भी तैयार रहते हैं और प्राधिकरण को रोजाना इसके लिए 3 से 4 लाख अपडेट प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच आज समूचे राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। एहतियात के तौर पर लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बुलंदशहर सहित करीब 21 जिलों में कल रात से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और पुलिस लोगों से निरंतर शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बांग्लादेश के धार्मिक और देशज समुदायों के प्रतिनिधि संगठनों और व्यक्तियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को मानवीय बताया है। इन लोगों के समूह ने कहा है कि कानून के जरिए भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के प्रति अपना फर्ज पूरा किया है, जो हाल के वर्षों में इन देशों से भारत गए लेकिन जिन्हें कोई अधिकार नहीं था। अनेक देशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर युक्त बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में रह रहे बांग्लादेश के प्रवासी हिंदुओं और अन्य धार्मिक तथा देशज समुदायों ने भारतीय संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम का पूरी तरह समर्थन किया है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में रैली की। प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष वी स्वामीनाथन के नेतृत्व में लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। हालांकि भाजपा के सहयोगी दलों एनआर कांग्रेस और एडीएमके पार्टी इस रैली में शामिल नहीं हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का स्थान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राज्यों में हमेशा ऊपर रहा है। आज शिमला में एक रैली में उन्होंने कहा कि 4 परमवीर चक्र विजेता इसी राज्य के हैं। उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले इस प्रदेश के लोगों के साहस और बलिदान को नमन किया। श्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह संशोधित नागरिकता कानून के बारे में लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून में किसी की नागरिकता समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। करगिल युद्ध के दौरान 1999 में मुख्य भूमिका निभाने वाले मिग-27 विमानों ने आज अंतिम बार उड़ान भरी। इन लड़ाकू विमानों ने 3 दशक से अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा की। कई दशकों से वायुसेना के लिए ये विमान हवाई हमलों की रीढ़ रहे हैं। वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना अड्डे से 7 विमानों की स्क्वाड्रन को अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में वायुसेना के पूर्व अधिकारियों सहित सेवारत अधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के करगिल क्षेत्र में 5 महीने बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। स्थानीय नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी और जिम्मेदारी से करें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी पर ओडिशा की कला, संस्कृति और विरासत उकेरी गई है। इस अवसर पर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिया भाषा में अनारक्षित रेल टिकट का भी शुभारंभ किया। देश में आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान फिट इंडिया के तहत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय और युवा कार्य तथा खेलकूद मंत्रालय की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio, the news read by Anita Anand. Union Home Minister Amit Shah today saluted the bravery and sacrifices of the people of Himachal Pradesh for the country. Addressing a rally in Shimla today, Mr. Shah said that Himachal Pradesh has always been in the forefront in making supreme sacrifices for the country. He said there has been 4 Paramveer Chakra winners from the state. The rally was organized to mark the completion of 2 years of Jai Ram Thakur-led BJP government in the state. Mr. Amit Shah accused the Congress party for misleading people on the Citizenship Amendment Act CAA. He again said that the CAA has no provision to take anyone's citizenship away. BJP Working President JP Nadda, Union Minister Anurag Thakur and Chief Minister Jai Ram Thakur also spoke on the occasion. Union Minister Hardeep Singh Puri has said that Citizenship Amendment Act CAA does not alter India's secular credentials. He accused opposition parties of spreading misinformation on the new law. In a tweet, Mr. Puri said the CAA neither alters nor challenges rights of any Indian citizen, irrespective of religion, caste, creed, sect, ethnicity or race. He said the narrative that it threatens religious minorities in India is ignorance at best and treacherous at worst. The minister said the opposition against the new citizenship law is riding on a false narrative. Mr. Puri said the CAA does not mean that Muslims who are otherwise persecuted in these countries cannot apply for Indian citizenship. He added, in fact, in the last 5 years, Modi government has granted citizenship to nearly 600 Muslims from these countries. In Uttar Pradesh, situation in the entire state continues to remain peaceful amidst elaborate security arrangements in sensitive areas. As a precautionary measure, internet services are also blocked in around 21 districts, including the state capital Lucknow, Aligarh, Agra, Mathura and Bulandshahr since last night. State DGP O.P. Singh said Section 144 has been imposed in the entire state. Our correspondent reports that till now there are no reports of any untoward incident and the police is continuously appealing to the people to remain calm. Delhi police has conducted flag march in some parts of the northeast district of the national capital
with the members of the Aman Committee to ensure that law and order remains in control in the area. Speaking to AIR, Deputy Commissioner of Police Northeast, Ved Prakash Surya said, as a precautionary measure, ahead of Friday prayers, adequate deployment of the police has been made and flag march was conducted in Selampur, Jafrabad, Welcome and Mustafabad areas. He said the police is also appealing to the people to help police maintain peace and urge the people not to participate in any demonstrations. Vice President M. Venkaiah Naidu today dedicated to the nation the LPG bottling plant at Balangir in Odisha via video conferencing from Raipur in Chhattisgarh. His scheduled visit was cancelled due to inclement weather. Vice President, who waited for 2 hours at the Raipur airport to board the special chopper to Balangir, in his absence, Odisha Governor Professor Ganeshi Lal inaugurated the BPCL's LPG bottling plant. Aadhaar saturation across the country has now crossed 125 crore mark. Over 125 crore residents of the country have the 12-digit unique identity card. The achievement comes along with the rapidly increasing use of Aadhaar as primary identity document by citizens. This is evident from the fact that Aadhaar-based authentication services have been used close to 37,000 crore times and since its inception. At present, Unique Identification Authority of India UIDAI receives about 3 crore authentication requests every day. Residents are also more inclined to keep their details updated as UIDAI receives about 3 to 4 lakh update requests every day. Cold wave continues unabated in North India, including the national capital today. 21 trains were delayed due to weather conditions. In Delhi, the minimum temperature was recorded at 4.2 degrees Celsius last night, 3 notches below normal. The Delhi NCR region is expected to record its second coldest December since 1901. Met Department said the city will witness clear sky and severe cold day conditions. Haryana and Punjab also reeled under freezing cold. In Rajasthan, Fatehpur town in Sikar district recorded the season's lowest night temperature at -3 degrees Celsius. In Madhya Pradesh, rainfall, fog and cold wave conditions have made the weather extremely unbearable. In Bihar, classes have been suspended in government schools in many districts due to severe cold. And that is the end of this news bulletin.